Hello friends, welcome back to my channel. Jai Hind. Today I am going to discuss 4 दिसंबर 2024 करंट अफेयर डेली क्विज। जैसा कि आप जानते हो इस चैनल पे दिसंबर मंथ से डेली करंट अफेयर क्विज स्टार्ट है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो एंड टैप बेल आइकन बटन so you will get notification on time. So let's start. First question is, name the portal that was launched by Ministry of Statistics and Program Implementation to facilitate seamless access to official statistics in India. So this portal is e-Sankheki portal. Which organization has recently celebrated the Diamonds Jubilee on 26th November 2024 in New Delhi? तो this नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्होंने डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया है 26 नवंबर को। ठीक है, ये डिटेल्स हैं, अगर चाहो तो पॉज करके देख सकते हो एक बार, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। वेयर वाज द 11th एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज वर्कशॉप, इसको शॉर्ट में सैरेक्स 2024 हेल्ड फ्रॉम 28 नवंबर टू 29 नवंबर 2024। तो ये कोच्चि में हुआ था। Fourth question is, who was recently unveiled a specially minted RS100 commemorative coin to mark the centenary of State Bank of India's iconic Horniman Circle branch in Mumbai, Maharashtra? तो निर्मला सीतारमण जी ने अनवील्ड किया था, फाइनेंस मिनिस्टर। REC Power Development and Consultancy Limited has recently transferred a high voltage direct current transmission project to which organization? तो ये NTPC पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका आंसर है। ठीक है। Question number 6 is, which organization has recently imposed a penalty of 213.14 crore on Meta for abusing its dominant position? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाया मेटा पे 213 करोड़ रुपए का। ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक का प्लेटफॉर्म है मेटा, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following points is correct with respect to the Prime Minister Narendra Modi's visit to Nigeria, Brazil and Guyana from 16th to 21st November 2024? तो पीएम मोदी हैज़ अवार्डेड with Grand Commander of Order of Niger on 17 नवंबर 2024 in a ceremony at the State House by the President of Federal Republic of Nigeria, बिल्कुल सही है। He visited Rio de Janeiro, Brazil on 18 November to participate in G20 summit hosted by Brazilian President Luiz Lula da Silva, बिल्कुल सही है। India and Guyana signed 5 MOU during Prime Minister Narendra Modi visit to Guyana that covered various sectors। तो ये सी पॉइंट गलत हो जाएगा, ए एंड बी इज राइट। ठीक है, यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। पीएम मोदी हैज़ अवार्डेड विद ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर नाइजर, ये मिला है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 18 नवंबर को G20 पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। इंडिया एंड गुआना साइन 10 MOU, यहाँ पे कितना था 5 MOU ना, तो इंडिया और गुआना 5 नहीं 10 MOU साइन किए। ठीक है, ये देखना, पीएम मोदी हैज़ कॉन्फर्ड विद ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड बाय द पीएम मियां उमर मोटली ऑफ बारबाडोस फॉर एक्नॉलेजिंग हिज लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड द फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी? तो इंडिया ने साइन किया रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। इसमें इस ट्रीटी में क्या होता है कि इंडिया साइंड द फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी मार्किंग द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। इसमें विपो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का है, ये मतलब this treaty adopted by the member states of WIPO aims to harmonize and simplify the recognition process for industrial design across various jurisdictions। ठीक है। Question number 9 is, which organization has recently signed an agreement with India's Ministry of External Affairs to implement solar energy project in Fiji, Comoros, Madagascar and Seychelles? तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एग्रीमेंट किया है इंडिया के MEA के साथ में। ठीक है। Which organization unveiled a comprehensive roadmap to make all coastal communities tsunami ready by 2030? तो ये यूनेस्को ने किया था, ऑप्शन नंबर ई, सुनामी रेडी 2030 तक बन जाएगा। Which of the following companies has not received the license of RBI to operate as payment aggregator क्रॉस बॉर्डर एंटिटी के तहत? तो कैस्परी को मिल चुका है, अमेजन को मिल चुका है, एडन इंडिया को भी मिल चुका है, बिल्डेस को भी मिल चुका है। तो रोजर पे राइट आंसर, रोजर पे को अभी तक क्रॉस बॉर्डर एंटिटी का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, ये देख लेना। Question number 12, which company has recently launched Pragati Saving Account to support farmers and meet the banking needs of rural and semi-urban people across India? तो that bank is HDFC, प्रगति सेविंग अकाउंट टू सपोर्ट। प्रगति सेविंग अकाउंट HDFC में। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 225.5 million फंडिंग फॉर द इनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा नागालैंड। तो जितना भी वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सब ना जितना आते जाएगा उसको एक जगह नोट करते जाएगा आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ओमनीजेन AI, अ जनरेटिव AI सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिस्क इवैल्यूएशन इन अंडर राइटिंग? तो दैट इज कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। ये इन्होंने ओमनीजेन AI
इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विथ द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू इन्हांस क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो दिस इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, who has recently become the first Indian to host international Emmy Award 2024? The first Indian to host international Emmy Award is शायद आदित्य सॉरी वीरदास इसका आंसर है, मैं थोड़ा भूल गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू होस्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड वीरदास को फर्स्ट इंडियन जो है होस्ट किया एमी अवार्ड 2024 को, ठीक है। who was recently appointed as the new chief of BrahMos Aerospace। तो BrahMos Aerospace के न्यू चीफ डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी जोशी जी बने हैं। अपॉइंटेड एज द BrahMos रशिया और इंडिया ने मिलकर के बनाया है, पर दोनों की इंपॉर्टेंट नदियाँ मॉस्को रिवर MOS और ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर, ठीक है। और मॉस्को रशिया के रिवर, दोनों रिवर के नाम पे ब्रह्मोस पड़ा, ठीक है। दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर करते हैं। हु वाज रिसेंटली रिसीव्ड 1 year एक्सटेंशन एज चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। मल्लिका श्रीनिवासन जी, पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड सिलेक्शन की खुद की मालिक है मल्लिका श्रीनिवासन जी, ऐसे करके याद कर सकते हो। एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 25 से 29 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया था। विच डिस्ट्रिक्ट इन असम्स बराक वैली हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर रीनेमिंग बाई असम कैबिनेट। तो करीमगंज का नाम चेंज किया गया है, ठीक है, असम का करीमगंज। क्वेश्चन नंबर 21, which organization has recently unveiled the NASA inspired trophy for 32 टीम क्लब वर्ल्ड कप 2024। तो ये फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन का इन्होंने अनवील कराया नासा इंस्पायर्ड ट्रॉफी। who was recently appointed as the brand ambassador for पिकल बॉल। तो पिकल बॉल में मनीत्रा बेदी जी, ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करी गई है पिकल बॉल की, ठीक है। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन अनाउंस्ड मंदिरा बेदी एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पिकल बॉल। Mandira embodies the passion and energy that AIPA aims to bring the pickleball in India. Question number 23 is name the mobile application that recently launched to strengthen the fight against doping in sports, urging athletes, coaches, and the entire sporting community to embrace the National Anti-Doping Agency. So that is Know Your Medicine. Question number 24 is which platform has recently partnered with Urban Company to empower women salon and beauty parlor owners? तो ये women entrepreneurship platform. Question number 25 is which Indian naval sailing vessel all women crew was recently honored by Western Australia's Parliament for undertaking a global circumnavigating expedition? तो ये INS तारिणी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, who will be the hosting that 97th Oscar Award in 2025? तो कैनन ओ ब्रायन ये होस्ट करेंगे 97th ऑस्कर अवार्ड इन 2025, ठीक है। First time and missing Hollywood's most anticipated award night. The ceremony will take place in Dolby Theatre in Hollywood, California on March 2nd, 2025 and will air live on ABC in over 200 territories worldwide. Oberyn has previously hosted the Emmys in 2002 and 2006 and the MTV Movie Award in 2014. बहुत फेमस पर्सनालिटी है। When was the National Federation of State Cooperative Bank Limited NAFSCOB established? तो 1964 में established हुआ था। ओह माय गॉड, गलत टिक लग गया, तो ये रॉन्ग टिक लग गया था इसमें। इसका डेट देख सकते हो। इसके चेयरमैन कोंडारू रविंदर राव है, 1964, हेडक्वार्टर मुंबई। MD एंड CEO ऑफ कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। तो ये इसका MD एंड CEO अनुज माथुर जी हैं, मिस्टर अनुज माथुर। हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड दैट इज मुंबई एंड ईयर 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन, मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन करंट चेयरमैन विपिन कुमार जी, ठीक है। तो ये है 30 क्वेश्चंस 4 दिसंबर 2024 के। नेक्स्ट सीरीज़ कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।